اس مووی کے سٹارٹ میں 16ویں صدی کے ٹائم میں میسو امریکن رین فارسٹ دکھایا جاتا ہے، جہاں ابھی امریکن ماڈرن سیولائزیشن کا تصور بھی نہیں تھا، اور وہاں جنگلوں میں مختلف جنگلی قبیلے آباد تھے۔ ہم بھی ایسے ہی ایک قبیلے کے کچھ آدمی دیکھتے ہیں جو جنگل میں شکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے جنگل میں شکار کے لیے پھندے لگا رکھے تھے۔ ان کا شکار بھی بھاگتے ہوئے ایک پھندے کی رسی سے ٹکراتا ہے تو سامنے سے ایک بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا جس پر لکڑی کی تیز اور نوکیلی لکڑیاں لگی ہوئی تھی وہ شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ کر شکار کو کاٹتے ہیں اور آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان میں سے ایک کو احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے آس پاس بھی کوئی ہے۔ یہ آدمی جیگوار ہے جو اس قبیلے کے سردار فلنٹ اسکائی کا بیٹا ہے۔ جیگوار جنگل کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو تبھی جھاڑیوں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں اور ان کے سامنے 4 مچھلیاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ تب یہ لوگ بھی ابھی ابھی کیے جانے والے شکار کا ایک ٹکڑا ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور قبیلے کا سردار فلنٹ اسکائی ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے گزر سکتے ہو۔ اگلے ہی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے سے بہت سے لوگ نکل کر وہاں سے گزرنے لگتے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور ان کی حالت کافی خراب تھی۔ ان کے قبیلے کا آدمی بتاتا ہے کہ ہمارا قبیلہ تباہ ہو گیا ہے اور اب ہم نئی شروعات کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ جیگوار ان سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس کا باپ اسے روک دیتا ہے، لیکن جیگوار کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر سردار ان سب کو واپس اپنے قبیلے میں جانے کو کہتا ہے۔ قبیلے پہنچنے سے پہلے سردار جیگوار کو باہر ہی روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ جیگوار کہتا ہے کہ ہاں میں پریشان ہوں۔ سردار کہتا ہے کہ تم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا؟ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، اور خوف ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے جو باقی سب کو بھی بیمار کر دیتا ہے اور موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اپنا یہ خوف لے کر قبیلے میں جاؤ۔ پھر سب لوگ قبیلے میں آ جاتے ہیں۔ وہاں کے سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ جیگوار بھی اپنی جھونپڑی میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ رات کو قبیلے کے سبھی لوگ آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے وہاں ایک بوڑھا آدمی سب کو کہانی سناتا ہے، پھر وہ سب لوگ ناچنے گانے لگتے ہیں، لیکن ان سب کے بیچ جیگوار کھویا کھویا سا تھا۔ اس کی بیوی بھی یہ بات محسوس کر لیتی ہے لیکن جیگوار اسے کچھ نہیں بتاتا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی جیگوار کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے باہر قبیلے میں کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کا شک ٹھیک ہی تھا کیونکہ مایا قبیلے کے لوگ حملہ کرنے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مشلیں تھیں اور ان کا خونخوار سردار زیرو ولف بھی ان کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی جیگوار کو مشلیں دکھائی دیتی ہیں وہ خطرہ بھانپ جاتا ہے اور جلدی سے اپنی بیوی اور بچے کو لے کر باہر نکلتا ہے، لیکن ایک حملہ آور انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ جیگوار اسے ختم کر دیتا ہے اور اپنی فیملی کو لے کر ایک سوکھے ہوئے کنویں کے پاس آتا ہے، پھر رسی کی مدد سے انہیں کنویں میں اتارنے لگتا ہے۔ جیگوار کو ایسا کرتے ایک اور حملہ آور دیکھ لیتا ہے اور بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہے، لیکن جیگوار تیزی سے اپنی بیوی اور بچے کو نیچے اتارنے لگتا ہے۔ آخر میں اسے رسی چھوڑنا پڑتی ہے جس سے وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں۔ وہ حملہ آور جیسے ہی جیگوار کے قریب پہنچتا ہے، جیگوار اس کا پیر پکڑ کے اسے گرا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آدمی کنویں میں گرنے لگتا ہے جیگوار اسے کھینچ لیتا ہے۔ وہ آدمی کنویں کے اندر جیگوار کی بیوی بچے کو دیکھ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو بتاتا جیگوار اسے مار دیتا ہے۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے قبیلے کے باقی لوگوں کی مدد کرنے جانا ہے، میں جلد ہی واپس آؤں گا۔ اس کی بیوی اسے روکتی رہ جاتی ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ قبیلے کے بہت سے لوگوں کو مار دیا گیا تھا اور باقیوں کو باندھا جا رہا تھا۔ ان میں ایک درندہ صفت باشندہ بھی تھا جس کا نام مڈل آئی تھا۔ وہ اپنے چاقو سے جیگوار پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی جیگوار کو مارنے لگتا ہے جیگوار اس کا ہاتھ پکڑ کر چاقو کا رخ اس کی طرف ہی موڑ دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چاقو مڈل آئی کے سینے میں اتار دیتا مایا قبیلے کا سردار زیرو ولف پیچھے سے آ کر جیگوار کو روک دیتا ہے اور پھر جیگوار کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ مڈل آئی جیگوار کو مار دینا چاہتا تھا لیکن زیرو ولف اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ جیگوار کے باپ کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر جیگوار اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دے۔ یہ بات سن کر مڈل آئی سمجھ جاتا ہے کہ وہ جیگوار کا باپ ہے اور پھر وہ جیگوار کی نظروں کے سامنے ہی اس کے باپ کو مار دیتا ہے۔ پھر وہ جیگوار کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے قبیلے کے بچ جانے والے سبھی مردوں اور عورتوں کو باندھا ہوا تھا۔ جیگوار کنویں کی طرف دیکھتا ہے جہاں اس کی بیوی اور بیٹا چھپے ہوئے تھے۔ مایا قبیلے کے سردار کا بیٹا اسے کنویں کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، پھر وہ کنویں کے پاس جاتا ہے
जहाँ उसे कुएं के अंदर जाते हुए एक रस्सी मिलती है। इसलिए उसे शक होता है। वो कुएं के अंदर देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जगुआर की बीवी और बच्चा कुएं में पत्थर के नीचे छुपे हुए थे। फिर वो अपना शक दूर करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर कुएं में फेंकता है, लेकिन उसे कोई हरकत या आवाज नहीं आती, तो वो रस्सी काटकर कुएं में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग कबीले के सारे मर्दों और औरतों को कैदी बनाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं और बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे फिर भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, क्योंकि अब वो अकेले रह गए थे। रास्ते में उन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो कल उन्हें शिकार करते हुए मिले थे। उन्हें भी कैदी बनाया हुआ था। अब माया कबीले के हमलावर सभी कैदियों को लेकर जंगल से निकल जाते हैं और दरिया पार करने लगते हैं। उनके पीछे आते हुए बच्चे वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वो दरिया पार नहीं कर सकते थे। दरिया से गुजरकर वो पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं और फिर एक लंबा सफर तय करके वो माया कबीले के इलाके में दाखिल हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हें बहुत से मरे हुए लोग दिखाई देते हैं जो किसी खतरनाक बीमारी के हमले से मारे गए थे। उनके पास एक बच्ची बैठी हुई थी जो उन लोगों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग उसे अपने करीब आने से रोक देते हैं, क्योंकि ये बीमारी छूने से फैलती थी। तभी उस बच्ची की नजर जगुआर पर पड़ती है, तो वो उन लोगों से कहती है कि जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब दिन में अंधेरा फैल जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और फिर तुम्हारा और तुम्हारी इस सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। फिर वो लोग बच्ची को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ से आगे वो इलाका आता है जहाँ बहुत से गुलामों को मजदूर बनाकर उनसे काम लिया जा रहा था। उन सभी की हालत बहुत खराब थी। ये लोग वहाँ से भी गुजर जाते हैं और अब आगे माया कबीले का शहर आता है। माया शहर काफी तरक्की याफ्ता था। यहाँ पक्के मकान और इमारतें बनी हुई थी। खड़ियों पर कपड़ा बनाया जा रहा था और बाजारों में हाथ से बनी बहुत सी चीजें बेची जा रही थी। फिर वो लोग कैदी औरतों को बाजार में बेच देते हैं और कैदी मर्दों को आगे ले जाया जाता है, जहाँ लोग इन सब कैदियों को नीले रंग से रंग देते हैं। वहीं उन्हें दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें बनी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें नीले रंग के इंसानों को कुर्बान करने की मंजरकशी की गई थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है। सामने एक कुर्बानगाह बनी हुई थी जहां इंसानों को भेंट चढ़ाया जा रहा था। उन सभी कैदियों को इस कुर्बानगाह में ले जाया जाता है और फिर कुर्बानगाह में एक एक करके कैदी की कुर्बानी दी जाने लगती है। सबसे पहले कैदी का दिल निकाला जाता है और फिर सर तन से जुदा कर दिया जाता है। ये सब वो अपने खुदाओं को खुश करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके खुदा उनसे नाराज हैं। इसीलिए उनके कबीले में बीमारी फैल रही है और उनकी फसलें सूख रही हैं। जगुआर को भी अब कुर्बानगाह में लिटा दिया जाता है। वहाँ मौजूद पेशवा जैसे ही उसके सीने में चाकू उतारने लगता है, सूरज ग्रहण लग जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। यहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म होता है, पेशवा ऐलान कर देता है कि अब खुदा हमसे खुश हो गए हैं, इसलिए अब मजीद कुर्बानी नहीं दी जाएगी और जगुआर को वहाँ से उठा लिया जाता है। सरदार पेशवा से पूछता है कि अब पकड़े हुए आदमियों का क्या करना है, तो वो कहता है कि उनसे छुटकारा हासिल कर लो। फिर जगुआर और बाकी कैदियों को टारगेट प्रैक्टिस के लिए एक मैदान में लाया जाता है, जिसके आगे मकई का सूखा हुआ खेत था और उसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। वहीं सारे हथियार खोलकर रख दिए जाते हैं। फिर सरदार अपने बेटे को मैदान के आखिर में सूखे हुए खेत के पास भेज देता है, ताकि कोई भी कैदी मैदान में बच भी जाए तो वहाँ से निकल ना पाए। फिर इन सभी कैदियों को खोल दिया जाता है। मिडल आई कहता है कि मकई के खेत के पीछे तुम्हारा जंगल है, भागो और आजाद हो जाओ। फिर दो कैदी भागते हैं तो वो लोग उन पर नेज़े, भाले, तीर और भी मुख्तलिफ हथियार फेंकने लगते हैं, जिनकी जद में आकर वो दोनों कैदी मारे जाते हैं। फिर मिडल आई जगुआर और एक और कैदी को भागने का कहता है। वो दोनों ही पहले जाने वाले दोनों कैदियों का हशर देख चुके थे, इसलिए वो सीधा भागने की बजाय जिगजैग डायरेक्शन में भागने लगते हैं ताकि उनके वार से बच सकें। लेकिन फिर भी जगुआर के साथी को तीर लग जाता है और वो मर जाता है। जगुआर जैसे ही खेत के करीब पहुंचता है, उसे भी एक तीर आ लगता है, लेकिन वो मरता नहीं है। वहीं मौजूद सरदार का बेटा जगुआर को मारने उसके पास जाता है। तभी वहाँ एक जख्मी कैदी उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता है। इतनी देर में जगुआर अपने जिस्म में लगे तीर का सिरा तोड़ लेता है और फिर जैसे ही सरदार का बेटा दोबारा उसे मारने उसके करीब आता है, जगुआर उसी तीर से उसे मार देता है। फिर जगुआर उठकर तीर का दूसरा हिस्सा भी अपने जिस्म से निकालता है और भागकर खेत में घुस जाता है। अपने बेटे को अपने हाथों में मरता देखकर सरदार भी अपने आदमी लेकर उसका पीछा करने लगता है। खेत से निकलते ही जगुआर एक बहुत बड़े से गड्ढे में गिरता है।
जहाँ उन लोगों की सर कटी लाशें पड़ी हुई थी जिन लोगों को कुर्बान किया गया था। वहाँ से निकलकर जैगुआर जंगल में भागता है और वहाँ एक दरख्त पर चढ़ जाता है। सरदार और उसके साथी भी जैगुआर को ढूंढते हुए उस दरख्त के नीचे से गुजरते हैं। तभी जैगुआर जो कि जख्मी था, उसके खून की बूंद मिडल आई पर गिर जाती है। कुछ दूर जाकर वो लोग रुक जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि जैगुआर इस तरफ नहीं आया। फिर वो मिडल आई पर खून की बूंद गिरी देखता है तो ये देखकर वो समझ आता है कि जिस रास्ते से गुजरकर वो आए हैं, जैगुआर जरूर वहीं किसी दरख्त पर छुपकर बैठा हुआ है। वो वापस पीछे की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जिस दरख्त पर जैगुआर था, उसे वहाँ एक जैगुआर का बच्चा दिखाई देता है और फिर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और जैगुआर पर हमला कर देती है। जैगुआर वहाँ से तेजी से भागने लगता है और जिस तरफ कबीले के लोग गए थे वो भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा था। जैगुआर के पीछे वो जानवर जैगुआर भी भाग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जैगुआर पर हमला करता, उसके और जैगुआर के बीच कबीले के हमला आवरों में से एक आदमी आ जाता है और वो जानवर उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। इतनी देर में सरदार और बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस जानवर को मार डालते हैं और दोबारा से जैगुआर का पीछा करने लगते हैं। जैगुआर भागते भागते एक दरख्त की छाल उतारकर अपने जख्म को बंद कर देता है ताकि खून रुक जाए। सारी रात वो भागता रहता है और फिर सुबह हो जाती है। वो कबीले के लोग अब भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी उनके एक आदमी को सांप डस लेता है और वो मर जाता है। अब भागते भागते एक जगह आकर जैगुआर रुक जाता है क्योंकि आगे रास्ता खत्म था और आबशार नीचे दरिया में गिर रही थी। जैगुआर उस आबशार में छलांग लगा देता है और नीचे दरिया में आ गिरता है, लेकिन वो सब लोग देखते हैं कि जैगुआर बचकर दरिया से बाहर आ गया है। फिर जैगुआर उन लोगों की तरफ रुख करके कहता है, मेरा नाम जैगुआर पॉ है, मैं फ्लिंट स्काई का बेटा हूँ। मेरे बाप ने मुझसे पहले इस जंगल में शिकार किया, मैं भी एक शिकारी हूँ। ये जंगल मेरा है और मेरे बेटे भी इस जंगल में शिकार किया करेंगे। फिर वो उन सबको ललकार कर कहता है कि हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर सरदार के साथियों में से एक सरदार को कहता है कि हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। सरदार उसको भी मार देता है और फिर वो लोग एक एक करके वहाँ से छलांग लगाने लगते हैं। उनमें से एक और आदमी पत्थर से टकराकर मर जाता है, लेकिन बाकी सब बचकर जंगल के किनारे आ जाते हैं और दोबारा से जैगुआर का पीछा करने लगते हैं। जैगुआर भागते हुए एक दलदल में गिर जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को दलदल से निकाल लेता है। वो कीचड़ में लुथड़ा हुआ था। कुछ दूर जाकर वो रुक जाता है और खुद से कहता है कि मैं जैगुआर हूँ, ये जंगल मेरा है और मैं किसी से नहीं डरता। फिर वो हमला आवरों से भागने की बजाय उनका मुकाबला करने का फैसला करता है। फिर जैसे ही हमला आवर उसके पास पहुँचते हैं, जैगुआर सामने ही खड़ा था। जैगुआर शहद की मक्खियों का बड़ा सा छत्ता उन पर फेंक देता है और बहुत सी मक्खियाँ उन लोगों पर हमला कर देती हैं। फिर वहाँ से भागकर जैगुआर एक जहरीला मेंढक पकड़ता है और एक दरख्त से लंबे लंबे कांटे उतारता है। फिर वो कांटे इस जहरीले मेंढक की स्किन में डालकर उन पर जहर लगा लेता है और छुपकर पीछे बैठ जाता है। फिर जैसे ही वो लोग उसके करीब से गुजरते हैं, जैगुआर उनमें से एक को वो तीनों जहर आलूद कांटे मारता है, जिससे वो गिर जाता है। जैगुआर उस मरने वाले आदमी के करीब आता है तो देखता है कि सामने मिडल आई खड़ा था। जैगुआर मरने वाले आदमी का कुल्हाड़ा उठाकर मिडल आई को भी मार देता है। अब सिर्फ सरदार और उसके साथ दो साथी ही बचे थे। उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैगुआर उस कुएं की तरफ भागता है जहां उसकी बीवी और बच्चा छुपे हुए थे। इस कुएं में बारिश का पानी भर रहा था। वो कुएं तक पहुंच जाता है, लेकिन अब भी सरदार और उसके दो साथी उसका पीछा कर रहे थे। जैगुआर दोबारा से वहां भागता है। कबीले का सरदार उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते एक जगह पहुंचकर जैगुआर रुक जाता है। सरदार जैगुआर को देखकर उस पर तीर चला देता है जो उसके सीने में आ लगता है। जैगुआर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर से खड़ा होता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता। सरदार उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है तो वहाँ लगी एक रस्सी से उसका पैर टकराता है। असल में ये वही फंदा था जो जैगुआर और उसके कबीले के लोग जानवरों को शिकार करने के लिए जंगल में लगाया करते थे। सरदार का पैर जैसे ही रस्सी से टकराता है, सामने से तेज नोकदार लकड़ी आकर उससे टकराती है और उसके आर पार हो जाती है। सरदार भी अब मर चुका था। जैगुआर को दोबारा वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि बाकी बच जाने वाले दो आदमी अब भी उसके पीछे आ रहे थे। वहीं कुएं में पानी मुसलसल बढ़ता जा रहा था। जैगुआर की बीवी अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर एक पत्थर पर खड़ी हो जाती है और उसी वक्त उसका दूसरा बच्चा भी दुनिया में आ जाता है। दूसरी तरफ जैगुआर भागकर समंदर के किनारे आकर रुक जाता है और समंदर की तरफ देखने लगता है। उसके पीछे आने वाले दोनों आदमी भी वहां पहुंचकर रुक जाते हैं और वो भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं।
سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز ان کی طرف آ رہے تھے۔ موقع دیکھ کر جیگوار واپس جنگل میں آ کر اس کنویں کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو زندہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان تینوں کو کنویں سے نکال لیتا ہے۔ اب مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیگوار اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی سمندر میں بڑے بڑے جہاز دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کیا ہے، تو جیگوار کہتا ہے کہ ان میں بیٹھ کر بہت سے لوگ یہاں آئے ہیں۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہمیں ان لوگوں کی طرف جانا چاہیے، تو جیگوار کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں جنگل میں جانا چاہیے تاکہ ہم دوبارہ سے نئی شروعات کر سکیں، اور پھر وہ دونوں جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔